So today we are going to discuss cost of capital. This is your chapter number 7. Uh, do you have any idea what is cost of capital or what can it be? What the name suggests? Yes, anyone? Is it a cost? Yes, anyone can reply. What do you think what it can be? Okay. So लास्ट चैप्टर में हमने हमारा लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हमने 4 मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस जो थे वो स्टडी किए थे. वन इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, एंड व्हाट वाज द फोर्थ वन? रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो ये 4 मेन हमने टाइप्स पढ़े थे कि दीज आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस: इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस. Now, why equity shareholders invest in your company, or why preference shareholders want to invest in your company? Why debenture holders want to invest in your companies? कोई भी जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? उसको बदले में क्या मिल रहा है? Anyone? Why equity shareholders they are investing in your company? Yes, you can write in chat box. Are you hearing me? Can you listen to me? Yes, ma'am. Okay, so क्या मिलता है बेटा? Why they are investing in your companies? What they are getting? Yes, they are getting. Yes, you are writing return Okay. to earn dividend. Of course, equity shareholders they expect dividend. Preference shareholders expect dividend. Debentures they what they get? They get interest. Reserve surplus को भी कुछ मिलता है. Is there any cost? Yes, that is opportunity cost. अभी हम इसको पढ़ेंगे. What is actually opportunity cost? So, what is cost of capital? This is actually your minimum required rate of return. Minimum required rate of return, which is expected by investors. इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए दिस इज डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज देयर डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स के लिए इट इज इंटरेस्ट. मीन्स इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मीन्स ये वो रिटर्न है, मिनिमम रिटर्न है दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स और बाय द डिबेंचर होल्डर्स विच दे मस्ट गेट, जो उनको मिलना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? इफ योर कंपनी इज नॉट अर्निंग दिस मच ऑफ रिटर्न, व्हाट विल हैपन? The market value of your share will fall. So nobody will be interested in investing in your company. अगर हम उनको उनका मिनिमम जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न हम उनको वो नहीं दे सकते हैं, तो they will not invest in your company. So this is cost of capital. What is cost of capital? This is the minimum required rate of return which is expected by the investors. Investors include shareholders, equity shareholders, preference shareholders, debenture holders. Clear? Is this concept clear? What is cost of capital? So this is actually the return.
नाउ किसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, किसकी एक्सपेक्टेशन कम होती है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन रिस्क. So suppose this is the level of risk. You know the relationship between risk and return? Yes? Anybody? What is the relationship between risk and return? Direct relation. Direct relation, of course. Yes, right. There is positive relation between risk and return. So, is there any security or any investment which is having zero risk, which is having zero risk? Is there any investment alternative? Yes. Debentures. Debentures. Okay. There are government securities which are having a very minimum, or you can say zero risk. We call it government securities. क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती है इन मेकिंग पेमेंट. डिवेंचर्स में तो फिर कंपनी कर सकती है, बट गवर्नमेंट नेवर वो कभी वो नहीं करती है, डिफॉल्ट नहीं करती. सो दिस इज वी कॉल इट ज़ीरो रिस्क सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी वी ऑल्सो कॉल इट. सो इसका ये जो रिटर्न है, कुछ रिटर्न तो मिलेगा ही ना, तब भी रिटर्न तो होगा. दिस इज द नोन एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस इज जीरो लेवल, ये इसकी रिटर्न है. ओके. नाउ जैसे जैसे रिस्क लेवल बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाद देन कम्स डिबेंचर्स, देन कम्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड लास्ट में इट कम्स इक्विटी, इक्विटी शेयर्स. जैसे आपको पता है रिस्क लेवल किसका ज़्यादा है, डिबेंचर्स का है ज़्यादा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी. डिबेंचर से ज़्यादा रिस्क प्रेफरेंस शेयर्स में है इन्वेस्ट करने में, और प्रेफरेंस शेयर से सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने से है. कॉर्पोरेट इक्विटी, कॉर्पोरेट कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, दैट इज़ वेरी मच रिस्की. इज दैट सो? सो अगर डिबेंचर्स का रिस्क ज़्यादा है, दे विल डिमांड मोर, दे विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न, दिस इज देयर रिटर्न. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और उससे ज़्यादा है रिस्क, सो दे विल डिमांड और एक्सपेक्ट मोर रिटर्न. एंड जैसे क्योंकि इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर, इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की है, सो देयर रिटर्न विल बी मोर एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट. सो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, राइट. सो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑलराइट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोटेड बाय के. जब हम पूरे फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज के ओ. ओके. तो अभी कुछ आप पॉइंट्स नोट करिए, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये क्लियर है आपको? इसको इरेज कर दूं मैं? यस. Yeah. ओके. ऑलराइट. ओके. सो you can write the features of cost of capital. Write down in your copies. So what features are? First of all, it is not a cost as such. It is not a cost as such. Like we call it cost of capital. Cost of capital मतलब कोई cost नहीं है. क्या है ये? What is it? It is
रिटर्न, इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। Expected return. हाँ, कंपनी के लिए ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को ये रिटर्न पे करनी है, राइट। बट इसमें हम कोई वो नहीं ले रहे जैसे कोई एक्सपेंस किया जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं कंपनी के। दिस इज द रिटर्न, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न विच द कंपनी मस्ट पे टू इट्स शेयर होल्डर्स, इट्स डिबेंचर होल्डर्स, इट्स इन्वेस्टर्स, right? So that is why we call it, it is not a cost as such. Secondly, you can write cost of capital includes, what it includes? It includes, first it includes, अच्छा जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था, like this is risk free rate of return. नाउ ये डिबेंचर का है, ये प्रेफरेंस का है, दिस इज इक्विटी। सो ये तो मिनिमम है, दिस इज द रिस्क फ्री रिटर्न, ये तो सबको मिल रही है ना, ये वाला पोर्शन तो सबको मिल रहा है, ये तो सबको मिलेगा। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड प्लस 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 क्या मिल रहा है, जिसका जितना रिस्क उतना उसको प्रीमियम। सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क, प्रीमियम फॉर रिस्क या रिस्क प्रीमियम, आप यू कैन कॉल इट रिस्क प्रीमियम। सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड होगा जो जितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है उतना उसको प्रीमियम पे किया जा रहा है। नाउ कंपनी के जो रिस्क होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज बिजनेस रिस्क एंड अदर इज फाइनेंशियल रिस्क। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिस्क? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज बिजनेस रिस्क? यस, बिजनेस की जो फ्लक्चुएशंस हैं, बिजनेस के सेल्स की फ्लक्चुएशंस हैं, सेल्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से जो इसके प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, दैट इज बिजनेस रिस्क, राइट। और फाइनेंशियल रिस्क होता है, ये रिस्क अराइज होता है ड्यू टू डेट फाइनेंसिंग, जितना आप डेट ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि डेट हमने इसके फीचर्स में पढ़ा पीछे कि डिबेंचर्स आप जितना ज़्यादा डिबेंचर इशू करोगे बढ़ाओगे उतना आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है, क्योंकि डेट को पे करना इट इज़ कंपलसरी, इसका इंटरेस्ट पे करना इट इज़ कंपलसरी फॉर द कंपनी, राइट, इसकी पेमेंट करना इट इज़ कंपलसरी फॉर द कंपनी। सो जितना आप डेट का लेवल बढ़ाते जाओगे, 90% आपने डेट कर लिया, means your financial risk will be very high. So एक इन्वेस्टर जो होता है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये इन दोनों रिस्क के लिए प्रीमियम ले रहा है, ठीक है। एक कंपनी जो होती है दैट इज एक्सपोज्ड टू बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। So this risk premium is for premium for taking business risk as well as financial risk. So we can write it as risk-free rate of return plus premium for business risk plus premium for financial risk. Now is the definition clear? What is cost of capital? Yes. बेटे यहाँ तक आपको समझ आ गया? Okay. Okay. So this was about cost of capital. What is cost of capital? Next, significance of cost of capital. Why it is important? What is the use of cost of capital? Significance of cost of capital. I am denoting cost of capital by K. कहाँ कहाँ इसका यूज होगा? सिग्निफिकेंस, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। यू नो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, फंक्शंस में हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस,
What is capital structure? It is proportion of securities issued to be issued. Proportion of securities to be issued. लाइक इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमने इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो कितने परसेंट इक्विटी शेयर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि 40% इक्विटी शेयर्स रख रहे हैं हम, ओके। डिबेंचर्स जो हैं ये हमारे सपोज 40% हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये हम 20% इशू करेंगे। सो हमारी जो कैपिटल है, जितना हमें फंड चाहिए, टोटल कैपिटल को, सपोज टोटल कैपिटल इज 10 लाख, और इस 10 लाख को रेज करना है। कैसे करना है? 40% इक्विटी शेयर्स इशू करके, 40% डिबेंचर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। जनरली हम कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लेते हैं। सो नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए, विच मैक्सिमाइजेज द वैल्यू फर्म एंड मिनिमाइजेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट अलग है, दैट इज नोन एज के ई, डिबेंचर की इज के डी, प्रेफरेंस की के, इट इज डिनोटेड बाय के पी। पिछले जो मैंने आपको चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इनकी कॉस्ट जो है इफेक्ट करती है इन मेकिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर, इन डिसाइडिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम, वो मिनिमम आए। Clear? So here we are using the concept of cost of capital. Second, इसका यूज होता है in capital budgeting decisions. Do you remember what is capital budgeting decision? ये भी हमने functions में पढ़ा था। Capital budgeting decisions में capital budgeting decision होता है relating to your investment decision, generally long term investment decision। जब हम डिसाइड करते हैं कि विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और विच प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। फिक्स्ड एसेट्स, कौन सा फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है। रिमेंबर, यू कैन राइट योर रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, आर यू विद मी? आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, सो बीच में आप ऐसे रिप्लाई कर दो सो दैट आई कम टू नो कि यू आर विद मी। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब हमें ये देखना है कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। आपको याद होगा हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट किया था, एनपीवी, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। तो आई टोल्ड यू कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो प्रोजेक्ट हम चूज करते हैं जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज मैक्सिमम। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसके लिए वी यूज रेट, हम एक आर यूज करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। दैट रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट? सो दिस डिस्काउंट रेट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। क्लियर? एंड थर्ड, हम इसकी यूज़ करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कंपनी की, टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बिकॉज हमने ये कहा कि के इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट शुड बी अर्नड बाय द कंपनी। नाउ वी कैन कंपेयर इट विद एक्चुअल रिटर्न। व्हाट इज योर एक्चुअल रिटर्न? दिस इज एक्चुअल रिटर्न, दिस इज योर एक्सपेक्टेड, विच यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न। नाउ विच शुड बी हाई? R should be high और K should be high. This is your expected one. एक अच्छी परफॉर्मेंस एक तभी कहेंगे हम कंपनी की when R is greater than K. ठीक है? When you are earning more return as compared to your expected, so we say that your company is performing very well. Okay? So this is used to check for financial performance of the company also.
And next, in any financial decision, most of financial decisions में we use cost of capital concept. ठीक है? Many financial decisions जितने भी आप आगे लेते हैं, like dividend policy decision है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, या जितने भी हम लेंगे आगे फाइनेंशियल डिसीजंस, वेयर वी आर कंपेयरिंग द बेनिफिट्स विद कॉस्ट, देयर वी आर यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो इम्पोर्टेंस क्लियर है आप सबको? यस? ओके. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मीन्स डिफरेंट क्लासेस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. फर्स्ट कैटेगरी इज historical cost and future cost. Historical cost and future cost. See, what is historical cost? Which has already been incurred, जो आपके अकाउंट्स में अपीयर हो रही है, that is historical cost. So अगर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने हैं, which cost is more relevant, future cost or historical cost? Yes. Which one is more relevant? फ्यूचर कॉस्ट होती है विच इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी incurred in future. So which one is more relevant in taking your financial decisions? Yes, anyone can reply. Historical cost. Historical cost. Okay. Any other? See, future cost is, क्योंकि हम फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो किस से रिलेटेड ले रहे हैं, रिलेटिंग टू फ्यूचर. ठीक है ना? हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें कितने फंड्स रेज करने हैं. सो दीज आर रिलेटिंग टू फ्यूचर. सो फ्यूचर कॉस्ट इज मोर रेलिवेंट, बट ऑफ कोर्स द बेस विल बी हिस्टोरिकल कॉस्ट. बेस हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को ले सकते हैं, बट मोर रेलिवेंट इज योर फ्यूचर कॉस्ट. ऑलराइट. सो सेकेंड इज स्पेसिफिक कॉस्ट. Specific cost and composite cost. ओके. स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट. स्पेसिफिक होती है एक जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी की कॉस्ट है. ओके. पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट है, लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लाइक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. सो व्हेन वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दीज, या पूरी कंपनी की जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, तो दैट इज कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? दिस इज एक्चुअली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ, इन्हीं की वेटेड एवरेज होती है. दिस इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो इसको आप, सिंपल. इसको आप ओवरऑल कॉस्ट भी बोल सकते हो. ऑलराइट. ठीक है. सो स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस की इंडिविजुअली कॉस्ट, एंड कॉम्पोजिट कॉस्ट इज कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी ये जो डिफरेंट हमारे स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, इनकी कंबाइंड कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, इनकी हम एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, दैट इज कॉम्पोजिट कॉस्ट. देन थर्ड कम्स explicit explicit and implicit cost. Explicit and implicit cost. Now what is explicit cost? Explicit cost होती है the rate of return या rate या cost of capital at which present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow. So जिस रेट पे ये दोनों इक्वल हैं, that is known as explicit rate. This is also known as internal rate of return.
Okay. Yes. Do you remember what is present value? How do we calculate present value? ओके, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, थर्ड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी द रेट ऑफ रिटर्न, द रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नाउ प्रेजेंट, अच्छा अब अगर हम फंड्स को रेज कर रहे हैं तो उस केस में व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो? व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो? जो वो फंड्स हमें मिल रहा है दैट इज योर कैश इनफ्लो। और कैश आउटफ्लो क्या है? द इंटरेस्ट अमाउंट या डिविडेंड की अमाउंट जो हम उनको पे कर रहे हैं। सो अगर हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, सो दिस विल बी इक्वल टू इनफ्लोज यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू sum of present value of cash outflows. Where T ranges from 1 to n. फॉर्मूला याद है? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी मैंने आपको ये करवाया था। दिस इज एक्चुअली जो हमारा इस केस में क्योंकि हमारा आउटफ्लो हर ईयरली जा रहा है, सपोज हम ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या ईयरली डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो दैट इज योर आउटफ्लो एंड योर इनफ्लो इज द फंड्स विच यू आर गेटिंग नाउ। क्योंकि फंड्स तो आपको अभी मिल जाएंगे इफ यू आर रेजिंग इक्विटी शेयर सपोज, तो जो आपको मनी मिल रही है दैट इज योर इनफ्लो। So this is your explicit cost, the rate at which both are equal. Fourth type is, oh sorry, इसका implicit रह गया. Let me explain implicit cost. Now what is implicit cost? Also known as implied cost. क्या होती है implicit? Implied cost. This is actually opportunity cost. किसी को पता है what is opportunity cost? Yes. Opportunity cost. If we talk about retained earnings, अब रिटेन्ड अर्निंग्स को तो हमने कुछ भी नहीं देना, कुछ भी पे नहीं करना। सो इज देयर एनी कॉस्ट? क्या इसमें भी कोई है, रिटर्न है जो कंपनी को देनी पड़ रही है? डज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल? यस। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सो उसमें आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आर यू इन द क्लास? यस। नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स? चलिए, चलो ये बता दो, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स ना होती तो हम उनको क्या देते? रिटेन्ड अर्निंग्स का ऑपोजिट क्या होता है? डिविडेंड? यस और नो? अरे कोई तो रिप्लाई करो। यस, अंकित ने लिखा है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यस ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल। सो अगर सपोज हम रिटेन्ड अर्निंग ना करते, हम उनको डिविडेंड देते, राइट? सो वो डिविडेंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते वो शेयर होल्डर्स, कहीं ना कहीं तो उस डिविडेंड को इन्वेस्ट करते और उनको रिटर्न मिलती, राइट? सो वो रिटर्न जो हमने अब जो हमारे शेयर होल्डर्स ने फोरगो की, जो उन्होंने छोड़ी, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो एक्चुअली में तो हमें नहीं लग रहा कि कोई इसमें कॉस्ट है, बट इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? सो ये वो रिटर्न है, इसमें वो रिटर्न आएगी जो जो शेयर होल्डर्स ने फोरगो की, जो उन्होंने सेक्रीफाइस की, राइट? सो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड फोर्थ क्लास इज एवरेज कॉस्ट
and marginal cost. Now what is average cost? Average cost वही है, composite cost same है वो चीज़, the combined cost जो हम निकालते हैं, weighted average cost of capital, that is average cost. Now what is marginal cost? This is also average cost, but this is average cost of obtaining additional funds. मतलब अगर और एडिशनल फंड्स ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट हो, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल यूनिट के लिए जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी एडिशनल फंड्स, राइट. सो ये क्लासेस आपको क्लियर हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस. नो रिप्लाई. इज इट क्लियर बेटा सबको? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, यस. ओके, सो इसके बाद हम अब करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हम दोनों करेंगे स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस. मतलब हर एक की इंडिविजुअली कॉस्ट निकालना. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस. और दूसरा हम करेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, कंबाइंड. सो अभी सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला करेंगे, स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस निकालना. उसमें भी हम सबसे पहले करेंगे डेट का. सो कॉस्ट ऑफ डेट हम कर रहे हैं, this is denoted by KD, right. now cost of debt. अब डेट भी दो तरह का है, दो तरह का इसमें हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इन केस ऑफ इरिडीमेबल. now what is इरिडीमेबल डेट? जिसको आपको पे बैक नहीं करना है, जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, दैट इज इरिडीमेबल डेट. सो फर्स्ट हम कर रहे हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इन केस ऑफ इरिडीमेबल डेट. सो ये हम करेंगे बिफोर टैक्स भी करेंगे और आफ्टर टैक्स भी करेंगे. बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं? दिस इज डिनोटेड बाय के डी. इसके साथ आप बी वर्ड लगा सकते हो, बी लेटर यूज कर सकते हो. दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. दिस इज इक्वल टू, नाउ क्या होती है उनकी एक्सपेक्टेशन? इंटरेस्ट. सो आई अपॉन एन पी. आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, एंड एन पी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स कैसे निकालने हैं आपने? क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस होंगे लाइक इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लेस करके जो आएगा दैट इज नेट प्रोसीड्स. इफ दे आर इशूड एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम ऐड करके जो आएगा दैट इज नेट प्रोसीड्स. इफ इट इज रिटर्न दैट डिबेंचर्स आर इशूड एट पार का मतलब है फेस वैल्यू, ठीक है. सो उसमें कुछ ऐड या लेस नहीं होगा. इन केस अगर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं इशू करने के, तो वो माइनस हो जाएंगे नेट प्रोसीड्स में से, ठीक है. इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स. और इसी को अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, सो दिस विल बी मीन्स ये जो आपने निकाला आई अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 करके, इसी को हम बस क्योंकि डिबेंचर्स होते हैं, इसका इंटरेस्ट जो होता है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल. सो कंपनी के लिए एडवांटेज है. सो जो आपने ये निकाला है इंटू 1 माइनस टी कर दो, टी इज द टैक्स रेट. और अगर आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है तो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी. क्लियर? डू यू हैव बुक्स? बुक्स हैं बेटा आपके पास?
नो मैम। ओके, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, लाइक सपोज अ कंपनी इश्यूज रुपीज 15 lakh 8% debentures at, first case है at par, second case है at a discount of 7% and third case है at a premium of 10%. तो अभी फर्स्ट केस करते हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. अभी ये बिना उसका है टैक्स का, सो टैक्स इसमें नहीं है. ओके, 15 लाख के डिबेंचर्स हैं, दिस इज द फेस वैल्यू. इंटरेस्ट जो होता है 8%, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है, ऑलवेज. ठीक है. ओके, सो इंटरेस्ट की अमाउंट इसमें कितनी बनी? इफ 15 लाख अमाउंट है डिबेंचर्स की, सो इसका 8% विल बी योर इंटरेस्ट अमाउंट. कितना बन गया इंटरेस्ट? यस, 1,20,000. एंड नेट प्रोसीड्स इसमें कितने हैं? अगर एट पार है तो सेम अमाउंट 15 लाख इज द नेट प्रोसीड्स. नाउ फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट. इंटरेस्ट अपॉन 1,20,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100. सो ये आपका सेम रेट 8% आ जाएगा. एट पार वाला सेम ही आ जाएगा जो ये है 8%. क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड केस है एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%. सी, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहेगी 1,20,000 इन एवरी केस, क्योंकि फेस वैल्यू पे निकालना है हमेशा. इंटरेस्ट आपका 1,20,000 है. नाउ व्हाट इज द नेट प्रोसीड्स इन सेकेंड केस? 15 लाख के डिबेंचर है, 7% डिस्काउंट पे इशू किए हैं. सो व्हाट इज नेट प्रोसीड्स? 15 लाख में से माइनस कर देंगे हम 15 लाख का 7%. ठीक है, माइनस करिए जरा कितना आया ये. दिस विल बी द नेट प्रोसीड्स. It will come out to 13,95,000. Now calculate cost of debt. तो ये आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 13,95,000 इंटू 100. सो रेट आप निकाल लो. यस, कितना आया रेट? इट विल बी 8.6%. तीसरा केस आप करके देखिएगा एट अ प्रीमियम ऑफ, इफ दे आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. राइट. सो आपकी बुक अगर आपके पास हैं तो आप इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा. राइट. जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी से बुक ले लो. मैम एक ले लो, बोलो बेटा. भेज दो ग्रुप में. मैम इस क्वेश्चन की पिक भेज देना ग्रुप में. क्या भेज दूं? अच्छा, पिक भेज दूं. क्वेश्चन की पिक. ठीक है बेटा, आई विल सेंड इट. चलिए, ठीक है बेटा, आज का आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?